if I have 100 clients for which I am doing GST compliance, that is, I am filing their GSTR1 and 3B, etc., then this QRMP scheme will impact at least 70% of your taxpayers. यानी आपकी 70% क्लाइंटेज के ऊपर ये इंपैक्ट करेगा, एंड दैट इंपैक्ट विल बी अ पॉजिटिव इंपैक्ट, नॉट अ नेगेटिव इंपैक्ट. आपका 70% क्लाइंट्स के ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस हो. And now let us understand the scheme, and then at the end we will again reanalyze whether actually as a tax professional, sir, taxpayer को तो benefit हो या ना हो, आज की डेट में the major relaxation is required for the tax professionals. There are numerous changes, numerous compliance in every section of the law, be it GST, income tax, ROC, XYZ. So as a tax professional, we needed some time out, and this QRMP scheme will definitely give us that. So starting on with the QRMP scheme. So QRMP scheme is a return filing mechanism. ये रिटर्न फाइलिंग का मैकेनिज्म है. तो जब रिटर्न्स की बात हम कर रहे हैं तो मेरे 3 सेक्शन है, 37, 38, 39. 37 GSTR1 की बात करता है, आउटवर्ड सप्लाईज की बात करता है. 38 इनवर्ड सप्लाईज की बात करता है, दैट इज GSTR2 which was never brought, और 2A और 2B. एंड सेक्शन 39 जो GSTR3 और 3B की बात करता है. तो जो QRMP स्कीम है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी 37, 38, 39 रेड विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स वहीं से ओरिजिनेट होते हैं. सर जब भी कोई स्कीम आती है हमें ये पता होना चाहिए उसका इंडेक्स क्या है, वो कहां से ओरिजिनेट हो रही है. So they are originating from the return filing sections only, that is 37, 38, 39, read with their corresponding rules. Now I'm not going into the integrities of the rules, but it is for every one of us that if they want to do a further study, then how they should start. They should first read 37 with rule 59, then 38 with 59 and 60, then 39 with 61 to 67. Then they will understand the entire backdrop. उसमें normal scheme भी आएगी, उसमें QRMP scheme भी आएगी. Again starting. In this slide, the objective is not to discuss the integrities of the scheme, but to understand the scheme on a macro level, broader level. So it is applicable from 1st of January 2021. So it is already started. The QRMP scheme has already started from 1st of January 2021. Now this scheme is applicable to selected suppliers. सबके लिए applicable नहीं. There will be a set of suppliers. We will discuss who are those categories of suppliers. So a selected categories of suppliers will be eligible to pay taxes through a simple challan on a monthly basis. यानी एक मेरे टोटल रजिस्टर्ड पर्सन में से एक क्लास को उन्होंने उठाया, एक कैटेगरी को उन्होंने उठाया, एंड दे सेड ये कैटेगरी मंथली एक सिंपल चलान से टैक्स पे करेगी, प्लस ये क्वार्टरली अपना 3B और 1 फाइल करेगी. यानी एक सिलेक्टेड कैटेगरी मंथली टैक्स पे करेगी, क्वार्टरली 3B और 1 फाइल करेगा. मंथली टैक्स पेमेंट की डेट है 25th, मंथली टैक्स पेमेंट की डेट है 25th. GSTR 3B की डेट में कोई चेंज नहीं है, दैट इज 22nd और 24th. पहले मंथली होती थी, अब वो क्वार्टरली होगी. यानी अप्रैल में जून की डेट हो जाएगी 22nd और 24th ऑफ जुलाई. बट GSTR1 की डेट जो पहले मंथ एंड होती थी, क्वार्टर खत्म होता था, उसके बाद मंथ एंड पे डेट होती थी, दैट हैव बीन प्रीपोन्ड टू 13th. एंड द रीजन इज ऑब्वियसली GSTR 2A and 2B. So this is the backdrop. So a selected supplier will have an option. This is an optional scheme. If you wish to avail this scheme, you have to opt for this scheme. So a selected category will have an option to pay monthly taxes and quarterly return, both GSTR1 and 3B. And sir, why GSTR1 has been preponed? उसको 1 को 3B से पहले तो बाद में होती थी, अब पहले क्यों ले आए? अगेन याद रखना पड़ेगा, ऑटोमेशन. ड्राइविंग पॉइंट होगा GSTR1. GSTR1 फाइल करोगे, 2A 2B बनेगा, ऑटोमेटिकली 2A 2B से क्रेडिट आएंगे, 1 से लायबिलिटी आएगा, 3B ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा. तो द गवर्नमेंट इज मूविंग इट स्टेप टुवर्ड्स द ऑटोमेशन प्रोसेस. हर एक जो अमेंडमेंट आ रही है उसकी एक रीजनिंग है, उसका एक लॉजिक है. ऐसा नहीं हाँ 13th क्यों कर दिया, सो दैट यू हैव अ सफिशिएंट टाइम. आई एम नॉट जस्टिफाइंग.
At no point I am justifying Rule 36(4) or this amendment bringing in 86A, 86B. I am not at all justifying these steps. The only thing that I am bringing up is the reasons for these amendments. Now, starting on with which is the category of supplier, which are eligible for QRMP scheme. ये कौन से suppliers के ऊपर eligibility इसकी cover होती है? So QRMP scheme is eligible to any registered person. किसी भी registered person के लिए applicable है, subject to a condition उसकी previous financial year में. अभी हम 2021 में खड़े हैं, तो previous financial year 1920 में his aggregate turnover should be less than 5 crore rupees. Should be less than 5 crore rupees. And aggregate turnover means all India turnover of all the GSTNs taken together, including sale of capital goods, branch transfers, or any other amount that is to be included in the value of supply. चाहे आप टैक्स पे करते हो सप्लाई पे या नहीं, ये आपका पेट्रोल पंप है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी जीएसटी में आपकी टर्नओवर जब कैलकुलेट होगी उसको इंक्लूड करना है. सो इट इज एग्रीगेट टर्नओवर. तो जितने जीएसटीएंस हैं उनकी जो टोटल सप्लाई है, वेदर टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, सबको टोटल करेंगे. If that is up to 5 CR, you are eligible for QRMP. Otherwise, QRMP is not available to you. अब इस पूरी स्कीम के अंदर एक डाउट और एक कंफ्यूजन आया. मेरे 3 जीएसटीएंस है, दिल्ली, यूपी, हरियाणा. My Delhi turnover is 2 crores, my UP turnover is 2 crores, and Haryana turnover is also 2 crores. The aggregate of them is 6 crore rupees. So technically, I am not eligible for QRMP. But in circular, there was a code. In circular, there was a paragraph which was giving some different impression. मैं वो paragraph को यहाँ पे as it is लेके आया हूँ. Let us read this paragraph. It says that it is further clarified that the option to avail the QRMP scheme is GSTN wise. मेरी 3 रजिस्ट्रेशन थी, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, तीनों की 2-2 करोड़ से कम थी. इसको पढ़ने के बाद ये लगता है कि मैं तीनों के लिए इंडिविजुअली देख सकता हूं. इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट द ऑप्शन टू अवेल द QRMP स्कीम इज GSTN वाइज एंड देयरफॉर distinct person as defined in section 25 of the CGST Act, different GST on same PAN, have the option to avail the QRMP scheme for one or more GSTN. In other words, some GSTNs for the same PAN can opt for the QRMP scheme and the remaining GSTNs may not opt for the scheme. इस पूरे को पढ़ने के बाद आता है कि नहीं यार, मैं तो अगर मेरी GSTN की 5 करोड़ से कम है तो भी मैं QRMP ले सकता हूं. सर ऐसा नहीं है. इस प्रोविजन को, इस एक्सप्लेनेशन को मुझे पहले अपना जो रूल, जो सेक्शन अमेंड हुए थे उसके साथ रीड करना है. तो वो प्रोविजन कहता है एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस. अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं. 3 ही रजिस्ट्रेशन हैं, दिल्ली, यूपी, हरियाणा. तीनों की टर्नओवर 1 करोड़ ईच, एग्रीगेट टर्नओवर 3 करोड़ रुपीस, लेस देन 5 करोड़ एलिजिबल फॉर QRMP. मैंने अब एग्जांपल लिया दिल्ली, यूपी, हरियाणा, तीनों की 1-1 करोड़ की टर्नओवर, टोटल टर्नओवर 3 करोड़. आई एम एलिजिबल फॉर QRMP बिकॉज माय एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 5 करोड़. मैं QRMP के लिए एलिजिबल हो गया. नाउ आई हैव एन ऑप्शन कि मैं इसमें से दिल्ली और यूपी को QRMP में ले जाऊं और हरियाणा में मैं नॉर्मल स्कीम में रह जाऊं. नॉर्मल स्कीम का मतलब क्या होगा सर? नॉर्मल स्कीम मींस अ स्कीम इन व्हिच यू फाइल योर GSTR1 by 11th and GSTR3B by 20th on a monthly basis. यानी उसमें क्वार्टर GSTR1 का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा. आपको मंथली 1 फाइल करना है, मंथली 3B फाइल करनी है. या तो आपके पास ये ऑप्शन है और यू हैव अ QRMP स्कीम. अब मिडवे में कुछ नहीं रह गया. या तो मंथली GSTR1 फाइल करो 11 तक, 3B फाइल करो 20th, सर 20th, 22nd, 24th खत्म. या QRMP में आ जाओ, क्वार्टरली 1, क्वार्टरली 3B फाइल करो, मंथली टैक्स दो. तो देयर आर ओनली 2 स्कीम्स, नॉर्मल स्कीम एंड QRMP स्कीम. तो ये जो सर्कुलर का पैराग्राफ है ये रिलीफ दे रहा है. एक बारी पैन को टेस्ट करो, क्या उस पे QRMP एलिजिबल है? सर मेरी टर्नओवर कम है तो मेरा पैन एलिजिबल हो गया QRMP के लिए.
अब उस पैन में कुछ जीएसटीएन के लिए मैं क्यूआरएमपी लेना चाहता हूं, कुछ के लिए नहीं लेना चाहता हूं, वो आपका डिस्क्रिप्शन है, बट चेक जीएसटीएन लेवल पे नहीं होगा। फर्स्ट चेक वेदर दिस पैन इज एलिजिबल फॉर क्यूआरएमपी और नॉट। अगर पैन ही एलिजिबल नहीं है तो क्यूआरएमपी भूल जाइए। अगर पैन को क्यूआरएमपी एलिजिबल है, उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मैं 2 जीएसटीएन क्यूआरएमपी में लेके जाऊंगा, 2 मैं नॉर्मल में रखूंगा, या जैसा भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको क्रिएट करना है। Then let us understand this entire provision with some examples also. मेरी preceding financial year में turnover थी 3 crore rupees. My turnover in the preceding financial year was 3 crore rupees. My turnover for the current year, April to November, इसको आप December ले लीजिए, April to December is assuming 2 crore rupees. Whether I am eligible for QRMP scheme or not. तो मुझे क्या चेक करना है? मुझे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर चेक करना है। क्या 5 करोड़ से कम है? हाँ, कम है, तो मुझे क्यूआरएमपी एलिजिबल है। अभी हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं सप्लायर को एलिजिबल है या नहीं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है 3 करोड़ रुपीज। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है 3 करोड़ रुपीज। एम आई एलिजिबल फॉर क्यूआरएमपी? यस, यू आर एलिजिबल। बट मेरी करंट में दिसंबर तक टर्नओवर 5.5 हो गई है। ये जनवरी तक एप्लीकेबल, जनवरी से एप्लीकेबल है, तो मैंने दिसंबर तक देखा, मेरी दिसंबर तक टर्नओवर 5.5 सीआर हो गई है। अब क्यूआरएमपी एलिजिबल नहीं है। द क्यूआरएमपी स्कीम इज नॉट एलिजिबल बिकॉज दे हैव आल्सो एडेड अनदर कंडीशन। पहले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को देखो, और अगर प्रीवियस के बाद करंट फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगी, तो भी, यानी फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी आ गई दिसंबर तक, तो भी आपको क्यूआरएमपी स्कीम नहीं मिलेगी। थर्ड केस, मेरी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 6 करोड़ थी, करंट में सिर्फ 1 करोड़ है। वेदर क्यूआरएमपी स्कीम विल बी एलिजिबल? मुझे सबसे पहले क्या देखना है? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, वेदर इट वाज मोर देन 5, लेस देन 5 करोड़, नो, तो दिस स्कीम इज नॉट एलिजिबल, क्योंकि पिछले साल ही 5 करोड़ से ज्यादा थी। अनदर इलस्ट्रेशन, मेरी 1920 में टर्नओवर थी 3 करोड़। 2021 के लिए वेदर क्यूआरएमपी इज एलिजिबल? सर एलिजिबल है, बस दिसंबर तक 5 ना टच कराओ। ठीक है सर, दिसंबर तक 1 करोड़ है, उसके बाद भी 2 करोड़ है, टोटल 3 करोड़ ही रहेगी। पहले मैंने क्या पूछा? पिछले साल कितनी थी? 3 करोड़, 5 से कम है, एलिजिबल हो सर? करंट तक की चेक कर लीजिए, करंट तक की कितनी है सर? 1 करोड़ ही है। ठीक है, आप क्यूआरएमपी के अंदर एलिजिबल हो गए। ठीक है सर, मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च में क्यूआरएमपी में था, मैंने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करी, मंथली टैक्सेस पे करे। अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया, सडनली मुझे एक ऐसा वो मिला, कोई प्रोजेक्ट मिला जिसमें अप्रैल में ही टर्नओवर 7 करोड़ हो गई। अप्रैल में ही टर्नओवर 7 करोड़ हो गई। अब क्या करूं सर? मैं तो मिड के अंदर हूं, मैं तो पूरे क्वार्टर, मेरी जनवरी टू मार्च 2021 के अंदर मेरी ऑलरेडी एलिजिबल है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। यानी जो फर्स्ट क्वार्टर था वो एलिजिबल था, कोई डिस्प्यूट नहीं है, क्यूआरएमपी एलिजिबल। अप्रैल 2021 के अंदर ही 7 करोड़ होगी, लेकिन अब मैं अप्रैल से जून वाले क्वार्टर के बीच के अंदर हूं। अब मैं क्या करूं? देन द प्रोविजन सेज दैट इन दिस केस अप्रैल, मई, जून आप क्यूआरएमपी, आप क्वार्टरली रिटर्न ही फाइल करोगे, इवन तो आपकी उसी क्वार्टर में 5 करोड़ से क्रॉस कर चुकी है। लेकिन अगला क्वार्टर स्टार्ट होते ही, यानी जिस क्वार्टर में 5 करोड़ इंक्रीज करी है, यानी अप्रैल से जून है, यानी फर्स्ट क्वार्टर, तो सेकेंड क्वार्टर से आप नॉर्मल स्कीम में आ जाओगे। अगर यही थर्ड क्वार्टर में होता तो मैं फोर्थ क्वार्टर ऑफ 21-22 से नॉर्मल स्कीम में आता। यानी इस केस के अंदर पहले क्वार्टर तक मैं क्यूआरएमपी में रहूंगा। क्यों? क्योंकि पहले क्वार्टर में एक्सीड किया है, और जिस क्वार्टर में एक्सीड किया है उसके बाद से मुझे नॉर्मल स्कीम में वापसी आना पड़ेगा। यानी इन सिंपल वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जिस क्वार्टर में 5 करोड़ टापेगा, एक बारी मैं क्यूआरएमपी में आ गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, अब जिस क्वार्टर में 5 करोड़ टाप जाएगा उस क्वार्टर को भी मैं क्यूआरएमपी रखूंगा, उसमें भी क्वार्टरली रिटर्न, मंथली स्कीम रखूंगा। लेकिन जैसे ही वो क्वार्टर खत्म होएगा मुझे नॉर्मल स्कीम में अपने आप को लेके आना पड़ेगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, मेरी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर 1920 की थी 7 करोड़, करंट की टर्नओवर थी 2 करोड़,
21-22 की टर्नओवर मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि क्या मैं 1 अप्रैल 2021 से क्यूआरएमपी ले सकता हूं, नहीं ले सकता? पहला क्वेश्चन, जनवरी से मार्च के क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी अवेलेबल होगा या नहीं होगा? जनवरी से मार्च के लिए प्रीवियस ईयर क्या है मेरा? 19-20 की टर्नओवर कितनी है? 7 करोड़। ठीक है, करंट तक 5 करोड़ टच करी है? नहीं करी है। यानी पिछले साल में 7 करोड़ है, तो पहले लेवल पे ही मैं बाहर हो गया, बिकॉज माई टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़। तो 20-21 पे तो मैं सोचूंगा ही नहीं, मेरे को क्यूआरएमपी 20-21 की नहीं मिली। अब 1 अप्रैल आ गया, मैंने कहा यार अब तो पिछले साल 2 करोड़ ही है, 5 करोड़ से कम है, तो अब क्या क्यूआरएमपी मिलेगी? सर अब आपको क्यूआरएमपी मिल जाएगी। यानी फोर्थ क्वार्टर 2021 के लिए क्यूआरएमपी नहीं रहेगा, 21-22 से आप क्यूआरएमपी ले सकते हो। यानी हमेशा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देखना है, ऐसा नहीं है क्यूआरएमपी इस बार जिसको नहीं मिला उसको लाइफ टाइम नहीं मिलेगा। जब आपकी टर्नओवर कम होगी आप क्यूआरएमपी में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ से कम है, क्यूआरएमपी के अंदर आप एलिजिबल हो। अगर आप 5 करोड़ क्रॉस करते हो तो जिस क्वार्टर में क्रॉस करते हो उसमें आप क्यूआरएमपी ही रहोगे। नेक्स्ट क्वार्टर से यू विल हैव टू कम बैक टू दी नॉर्मल स्कीम। अब सर नेक्स्ट इशू आता है कि स्कीम को ऑप्ट कैसे करना है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये स्कीम ऑलरेडी 1 जनवरी से एप्लीकेबल हो गई है। अब इसको ऑप्ट कैसे करना है? तो पहले तो गवर्नमेंट हैज ईज्ड दिस प्रोसेस। द गवर्नमेंट हैज ऑटोमेटिकली शिफ्टेड द टैक्सपेयर टू क्यूआरएमपी ऑन सम प्रिंसिपल्स। और वो प्रिंसिपल्स क्या है? उन्होंने देखा आपकी टर्नओवर कितनी है, 1.5 करोड़ से कम है, आप GSTR1 कैसे फाइल कर रहे हो? मंथली और क्वार्टरली फाइल कर रहे हो, आपको क्यूआरएमपी में ऑटोमेटिकली डाल दिया। आपकी टर्नओवर कितनी है? आपकी टर्नओवर है 1.5 से 5 के बीच में, आपकी टर्नओवर है 1.5 से 5 के बीच में, आप GSTR1 फाइल कर रहे हो मंथली। क्यों? क्योंकि रूल कहता है 1.5 करोड़ के ऊपर मंथली। आपको भी उसने डाल दिया मंथली क्वार्टरली क्यूआरएमपी स्कीम के में। यानी आपकी 1.5 करोड़ से नीचे है, आपकी 1.5 करोड़ से नीचे है, आप क्वार्टरली 1 फाइल कर रहे हो, मंथली 3 भी फाइल कर रहे हो, आपको क्यूआरएमपी में भेज दिया। आपकी 1.5 से 5 के बीच में है, आपको क्योंकि मंथली 1 फाइल करना है, मंथली 3 भी फाइल करना है, बट आपकी टर्नओवर क्योंकि 5 से कम है, मैंने आपको भी क्यूआरएमपी में भेज दिया। अब थर्ड कैटेगरी वो है जिसकी टर्नओवर तो 1.5 करोड़ से कम थी, लेकिन उसने मंथली GSTR1 सिलेक्ट किया होता। उसकी टर्नओवर तो 1.5 करोड़ से कम थी, लेकिन मंथली 1 सिलेक्ट किया हुआ था, उसको गवर्नमेंट ने नॉर्मल स्कीम में ही रखा हुआ है, उसको सिस्टम ने नॉर्मल स्कीम में ही रखा है। उसको अगर क्यूआरएमपी में अब आना है तो उसको ऑप्ट करना पड़ेगा। वैसे आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड चेक ईच एंड एवरी क्लाइंट ऑफ योर्स वेदर ही इज ऑप्टेड फॉर क्यूआरएमपी और नॉट। आपके रिटर्न्स वाले सेक्शन के अंदर आता है ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी, वहां पे आपको सिलेक्ट करना है क्वार्टरली या मंथली। ऑटोमेटिकली क्वार्टर पे सिलेक्टेड आ रहा है तो कुछ नहीं करना, मंथली पे आ रहा है तो आप उसको क्वार्टरली सिलेक्ट करके सेव कर दोगे, दैट्स इट। ठीक है सर, ये तो समझ लग गया कि मेरे को करना है, लेकिन ये करना कब तक है? सर इसको करने की टाइम लिमिट है। जो पहला पीरियड है दैट इज 1 जनवरी से 31 मार्च 2021, इसके लिए भी लास्ट डेट इज 31 जनवरी। यानी जिसको क्यूआरएमपी में जाना है वो 31 जनवरी तक सिलेक्ट करेगा, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा और वो ऑटोमेटिकली क्यूआरएमपी में चला जाएगा। सर ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट टाइम वन टाइम वालों की बात। मेरी 19-20 में थी 10 करोड़, 20-21 में है 2 करोड़, मैं तो 21-22 से एलिजिबल होऊंगा, यानी 1 अप्रैल फर्स्ट क्वार्टर से एलिजिबल होऊंगा। उस केस में मेरी टाइम लिमिट क्या होगी? जो फ्यूचर है उसकी टाइम लिमिट क्या होगी? सर फ्यूचर की टाइम लिमिट हम एक एग्जांपल से करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि मुझे एलिजिबिलिटी चाहिए जुलाई से, मैं जुलाई से क्यूआरएमपी में जाना चाहता हूं, मुझे जुलाई अगस्त सितंबर के लिए क्यूआरएमपी में जाना है। तो द गवर्नमेंट सेज इस पीरियड के लिए क्यूआरएमपी जाने के लिए आप 2 महीना पहले, यानी मई 2 महीना पहले और 1 महीने उस क्वार्टर के अंदर रह के, यानी 1 मई से लेके 31 जुलाई तक आप कभी भी क्यूआरएमपी सिलेक्ट कर सकते हो फॉर सेकेंड क्वार्टर। 2 महीना पहले और 1 महीना उसी क्वार्टर के अंदर रह के, यानी 3 महीने का टाइम है किसी भी क्यूआरएमपी क्वार्टर में अपने आप को एलिजिबल करने के लिए। थर्ड क्वार्टर के लिए क्या होगा? अगेन सर 2 महीना पहले 1 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक, 2 महीना पहले और 1 महीना उस क्वार्टर के अंदर मैं सिलेक्ट कर सकता हूं।
सर इसका भी एक लॉजिक है, एक रीजन है। 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक क्या है, अभी क्वार्टर का पहला मंथ स्टार्ट हुआ है। आपके पास चॉइस है कि आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। एक बार ये मंथ खत्म हो गया, जुलाई खत्म हो गया, अब हम आपको चेंज नहीं करने देंगे। अब आपको चेंज करना है तो आप अगले क्वार्टर के लिए करोगे। यानी वो पीरियड, जैसे ही क्वार्टर मंथ खत्म होता है, आपके पास डिसीजन होना चाहिए कि आप क्यूआरएमपी में हो या नहीं हो। एक बार 15 अगस्त को आप डिसाइड करोगे क्यूआरएमपी, क्योंकि आप GSTR1 की ड्यू डेट मिस कर गए थे, उसकी पेनल्टी बचाने के लिए कर रहे हो, या XYZ रीजन है। सो इफ यू हैव टू डिसाइड, आप फर्स्ट मंथ की लास्ट डेट तक कर लो। अगर तब तक नहीं करते हो, ऑटोमेटिकली अब आपके पास सेकेंड क्वार्टर की विंडो खुल जाएगी 1 अगस्त से। क्यों? क्योंकि मैं अपना वन टाइम से फाइल नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने क्वार्टरली में शिफ्ट कर लिया। या कोई भी XYZ रीजन है, मैं टैक्सेस नहीं पे कर सकता इस महीने, मैंने अपने आप को क्वार्टरली में शिफ्ट कर दिया कि मैं बाद में देख लूंगा क्या करना है। तो देयर कुड बी मेनी, अगेन हमारे इंडियंस के सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जुगाड़ लगाने वाली। तो द गवर्नमेंट हैज रिस्ट्रिक्टेड इट कि पहले महीने में मंथ एंड होने तक डिसाइड कर लो क्वार्टरली रिटर्न में जाना है या नहीं जाना है। अगर नहीं सिलेक्ट किया तो मंथली में जाओगे। अब अगले क्वार्टर की बात करते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 21-22 के लिए मैं कब सिलेक्ट कर सकता हूं? अप्रैल से जून वाले क्वार्टर के लिए। तो हमारा क्या, अप्रैल से जून का मतलब क्या, 2 महीना पहले, यानी मार्च फरवरी। 1 फरवरी से उस क्वार्टर के पहले महीने के एंड तक, तो 1 फरवरी से लेके 30 अप्रैल तक। सिमिलरली थर्ड क्वार्टर के लिए अगस्त से लेके अक्टूबर तक मैं इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता हूं। 2 महीना पहले, 1 महीना उस क्वार्टर के अंदर। 1 महीना उस क्वार्टर के अंदर मतलब उस महीने तक आप डिसाइड कर लो क्या करना है, क्यूआरएमपी में जाना है या नहीं जाना है। सर अगेन आई एम एडवाइजिंग दैट आप अपने सारे क्लाइंट्स के अंदर ये चेक कर लेना कि जिस पे क्यूआरएमपी आप लोगों को चाहिए वो सारे ऑप्ट इन होने चाहिए। बाद में फिर हम लोग बोलते हैं कि सर मेरा रह गया, डेट एक्सटेंड कर दो XYZ। इट विल हार्डली टेक 2 minutes starting from logging into your account till selecting this option. It will hardly take 2 minutes. For 100 clients it will take approximately 200 minutes, which is approximately half a day. तो किसी एक बच्चे को बिठा के उसको करा लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है सर, अब मेरे को 2 बातें समझ लगी आपसे। एक कि सप्लायर कौन है जिसकी 5 करोड़ से कम टर्नओवर है पिछले साल में। दूसरा, मेरे को ऑप्ट करने का टाइम है 2 महीना पहले, 1 महीना क्वार्टर के अंदर। अब सर इसके अलावा क्या है, जो मंथली टैक्स पेमेंट होनी है वो क्या सिस्टम है? सर मंथली टैक्स का मतलब क्या है, जनवरी का टैक्स मुझे अगले महीने यानी फरवरी की 25 तारीख तक पे करना है। अब गवर्नमेंट ने इसके अंदर भी आप लोगों को एक रिलैक्सेशन देने की कोशिश करी। वो क्या रिलैक्सेशन देने की कोशिश करी? उन्होंने बोला एक मेथड तो आपके पास है ही है कि आप अपना उस महीने का आउटपुट निकालो, उस महीने का इनपुट माइनस कर दो, टैक्स पेबल जो आएगा वो आप पे कर देना, चलान होगा PMT 06, चलान होगा PMT 06। फिर लोगों ने बोला कि सर क्या फायदा हुआ अगर मंथली मुझे दोबारा से आउटपुट कैलकुलेट करना है, इनपुट कैलकुलेट करना है, तो मेरी तो किताबें तो पूरी बनानी पड़ेंगी, रिलैक्सेशन क्या आई? तो गवर्नमेंट ने बोला चलो जी हम इसमें भी आपको रिलैक्सेशन देते हैं, इसमें भी थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। उन्होंने एक फिक्स सम मेथड लाया। फिक्स सम मेथड का मतलब क्या है? उन्होंने बोला हम एज्यूम करते हैं 1 अप्रैल को खड़े, प्रीवियस क्वार्टर पूरा कंप्लीट हो गया जनवरी टू मार्च का, तो वो कहते अप्रैल और मई के लिए आपने जो लास्ट क्वार्टर में टैक्स पे करा है कैश लेजर से, जो लास्ट क्वार्टर में कैश टैक्स पे किया कैश लेजर से, तो मैं एज्यूम करता हूं मैंने 1000 रुपए पे किए थे, तो वो कहते हैं अप्रैल के अंदर आप 350 रुपए, मई के अंदर 350 रुपए पे कर देना, बिना कोई आउटपुट देखे, बिना कोई इनपुट देखे आप अपना 350 पे कर देना। जब आप उस क्वार्टर की रिटर्न फाइल करने आओगे, आपका 700 रुपए का टैक्स ऑलरेडी पेड है, आप अपनी नेट कैलकुलेशन करो, जो बैलेंस अमाउंट बनता है वो थर्ड मंथ में पे कर देना, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। यानी पहले महीने और दूसरे महीने 35% टैक्स पे करना है प्रीवियस क्वार्टर का, थर्ड मंथ में जो बैलेंस बनता है वो कर दो। इसमें आपको फायदा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट को एडवांस में पैसा मिल रहा है तो वो फायदा है,
आपको क्या आउटपुट और इनपुट पे दिमाग नहीं लगाना, एक फिक्स अमाउंट है, प्रीवियस क्वार्टर का फिगर उठाया, उसका 35% क्लाइंट को बता दिया, 2 महीने इतना टैक्स पे करना है, चालान पीएमटी 06 ही रहेगा। सो एक ऑप्शन मेरे पास है नॉर्मल मेथड, दूसरा है फिक्स सम मेथड। लेकिन क्योंकि ये एक फिक्स सम मेथड है तो कुछ ना कुछ इसके साथ कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन आई है। पहली, ये आपको तभी एप्लीकेबल होगा जब प्रीवियस क्वार्टर में आप पूरी तरह रजिस्टर्ड हो, यानी फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर से लेकर लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर। ऐसा नहीं है कि मैंने 28 मार्च को रजिस्ट्रेशन ली, 31 मार्च में मेरा कुछ टैक्स ही नहीं बना क्योंकि रजिस्ट्रेशन 28 की थी, अप्रैल से जून के लिए मैं फिक्स सम में चला गया, 35% ऑफ जीरो, जीरो अप्रैल में, जीरो 35% ऑफ जीरो मई में भी जीरो, जून में मैंने पूरा टैक्स पे कर दिया और गवर्नमेंट को बोला आपने ही बोला था प्लस माइनस होगा तो कोई फायदा नहीं। तो इसमें गवर्नमेंट ने पहले रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि प्रीवियस क्वार्टर आप पूरा टाइम रजिस्टर्ड होने चाहिए। हाँ, उसके बाद आपके टर्नओवर जीरो बनती है, टैक्स जीरो बनता है तो अलग बात है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होनी चाहिए, पूरे दिन होने चाहिए। सेकेंडली, अब सर ये तो होगी, आप बार बार बात कर रहे हो 1 अप्रैल और उसके बाद जनवरी से मार्च की, तो बता दो क्या करना है। सर जनवरी से मार्च कोई प्रीवियस क्वार्टर बनता नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला जो दिसंबर में कैश जमा कराओगे वही जनवरी और फरवरी में कराओगे, यानी दिसंबर की रिटर्न में आप जितना कैश पे करोगे वही आप जनवरी और फरवरी में करोगे, बाकी जो बैलेंस है वो मार्च में एडजस्ट कर दोगे, एक्सेस है तो आप गवर्नमेंट से रिफंड ले लेना या जो भी करना है वो कर लेना। लेकिन क्योंकि वन टाइम इंप्लीमेंटेशन है, कुछ शॉर्टकट अगर मेरे को देना है तो हमें तो यही समझ लगा कि दिसंबर का पे कर देना, हम एज्यूम कर लेंगे कि आपने टैक्सेस पे कर। तो नाउ यू हैव एन ऑप्शन कि आप नॉर्मल मेथड में जाना चाहते हो या फिक्स सम मेथड में जाना चाहते हो। एज सच अभी तक मुझे ये नहीं पता चला कि ये फिक्स सम मेथड कहां पे टिक करना है, ऑनलाइन मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है, बट वी विल सी कि क्योंकि अभी मेरे को अगले महीने टैक्सेस पे करने हैं, उससे पहले ये ऑप्शन शायद आ जाएगा वेदर आई एम पेइंग थ्रू नॉर्मल मेथड और थ्रू फिक्स सम मेथड, तब तक ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे ये कैसे पता चलेगा। एक बार और इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। एज्यूम करते हैं मेरी टोटल फर्स्ट क्वार्टर 21-22 के अंदर मैंने 1000 पे किया था, कैश से पे किया था। तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज जुलाई में 350, अगस्त में 350, 35% ऑफ द टोटल टैक्स पेमेंट, और जो बैलेंस है वो मैं सितंबर में पे कर दूंगा जब मैं क्वार्टर की रिटर्न फाइल कर रहा हूं। अगर मैंने 3000 सी और एस में पे किया हुआ है तो उसका 35%, 1050 बैलेंस में सितंबर में पे कर दूंगा। कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, अब एक्चुअल में बाद में पता चला यहाँ की लाइबिलिटी 250 थी, जुलाई की एक्चुअल लाइबिलिटी 250 थी, या जुलाई की एक्चुअल लाइबिलिटी 450 थी। गवर्नमेंट ने बोला मेरा फायदा या आपका फायदा, जो हो गया, जिसको होना था हो गया, ना मैं आपसे इंटरेस्ट मांगूंगा ना आप मेरे से कुछ पे बैक मांगोगे, सिर्फ आपको ये इंश्योर करना है 25 तक ये 350 रुपए जमा हो जाए, अगर 25 तक नहीं किए तो मैं इंटरेस्ट लगा दूं। यानी फिक्स सम मेथड के अंदर भी 25 तक आपको पे करना है, 25 के बाद आपको पे नहीं करना। ठीक है सर, ये भी समझ लग गया मोटा माटी। और नॉर्मल मेथड के अंदर भी 25 तक पे करना है और नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा। अब एक आया केस, सर हमने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 1000 पे किया था, हमने जुलाई के अंदर 350 पे कर दिया, अगस्त के अंदर 350 पे कर दिया, सितंबर में पता चला मेरा तो पूरे महीने में टैक्स ही नहीं बनना था, पूरे क्वार्टर का टैक्स ही नहीं बनना था, इनपुट ही इतना पड़ा हुआ था। अब सितंबर की रिटर्न फाइल करने के बाद मेरे कैश लेजर में भी बैलेंस पड़ा हुआ है, सितंबर की रिटर्न फाइल करने के बाद कैश लेजर भी भरा पड़ा है, क्रेडिट लेजर भी भरा पड़ा है। अगले महीने की बात कर रहा है, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर की बात हो रही है। मेरे पास ऑलरेडी ओपनिंग के अंदर कैश लेजर में भी पैसा पड़ा है, क्रेडिट लेजर में भी पैसा पड़ा है, या किसी एक लेजर में पैसा पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने बोला नॉर्मल मेथड में तो मैं उसको कंसिडर करता, आउटपुट इस महीने का इनपुट माइनस ओपनिंग इनपुट, बैलेंस ये है जो मैं पे कराता। फिक्स सम मेथड में तो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन अभी तक दी नहीं, उसने बोला प्रीवियस का 35%, लेकिन उन्होंने बोला अगर आपके लेजर में बैलेंसेस पड़े हैं, लेजर में बैलेंस कब पड़े होते हैं, जब आप रिटर्न फाइल कर दोगे। तो जब आपने सितंबर की रिटर्न फाइल कर दी, आपके लेजर्स में बैलेंसेस पड़े हैं, अब आपका बैलेंस इतना है कि वो लायबिलिटी ऑफसेट कर सकता है, तो आपको अलग से कैश पे कराने की जरूरत नहीं है। मैं अगेन रिपीट करता हूं, जुलाई अगस्त सितंबर में मैंने 350 रुपए पे कर दिए, पता चला सितंबर के अंदर मेरे को तो ये पे ही नहीं करना था, मेरे पास ऑलरेडी आईटीसी पड़ा था।
तो मेरी 700 रुपए की एक्सेस पेमेंट हो गई। मेरा 700 रुपए का यानी क्रेडिट बच गया और थोड़ा क्रेडिट और था। इस महीने अब अगली बारी मेरे को पता चला मैंने टोटल कैश कितना पे किया है, 700 रुपए। 700 का 35% एज्यूम करते हैं 250 रुपए होता है। गवर्नमेंट बोल रही है 250 रुपए जमा करा दो। मैंने बोला सर पहले ही मेरे क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा हुआ है, पिछली बार भी मेरा सरप्लस इकट्ठा हो गया था, अब मैं दोबारा करूंगा क्या जस्ट बिकॉज मैंने मंथली पेमेंट सिलेक्ट कर दिया। तो गवर्नमेंट ने यहां पे भी रिलैक्सेशन दे दी। गवर्नमेंट ने बोला अगर आपके क्रेडिट लेजर्स में बैलेंसेस पड़े हैं, माइंड माय वर्ड, बैलेंस में लेजर्स में ऑलरेडी होना चाहिए। अक्टूबर के क्रेडिट की बात नहीं कर रहा हूं, नवंबर के क्रेडिट की बात नहीं कर रहा हूं, सितंबर की रिटर्न फाइल होने के बाद जो क्रेडिट आ रहा है, ये जिस महीने की हम बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी लेजर में बैलेंसेस पड़े हुए हैं और वो इतने हैं कि इस लाइबिलिटी को कंपनसेट कर सकते हैं, आपको पे नहीं करना है। यानी मंथली पेमेंट में भी आपको फिक्स सम मेथड के अंदर भी कोई टैक्स पे नहीं करना है। और इंटरेस्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि प्लस माइनस होगा, तो किसी का फायदा किसी का नुकसान नहीं होगा। आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वो जो बैलेंसेस हैं लेजर के उसका क्या मतलब है। अब इसको मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। हम बात करते हैं जनवरी फरवरी मार्च की मैंने फाइल करी, उसमें मेरा 10,000 रुपए का टोटल टैक्स पे हुआ। मुझे 3500 रुपए अगले अगले महीने पे करने थे, मैंने वो पे कर दिए। उस क्वार्टर को खत्म करने के बाद पता चला कि यार मेरे पास तो कैश लेजर में भी बैलेंस आ गया, मेरा टीसीएस कट रहा था या टीडीएस कट रहा था, मैं भूल गया था, या मैं एक क्रेडिट मिस कर गया था, मशीन खरीदी थी उसका क्रेडिट मिस कर गया। अब दूसरा क्वार्टर स्टार्ट होने से पहले मैंने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, मेरे को पता चला मेरे कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में इतना बैलेंस है कि वो अगले 2-3 महीने का पूरा टैक्स एब्जॉर्ब कर सकता है। तब आपको पे नहीं कराना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके क्रेडिट लेजर और कैश लेजर में सफिशिएंट बैलेंस है, कहीं पे भी है तो भी आपको नहीं कराना। नहीं कराने का मतलब है नया पैसा नहीं कराना है, आपको अलग से 350 रुपए की कैश पेमेंट नहीं करनी। लास्ट पार्ट है जो क्यूआरएमपी स्कीम का, दैट इज रिटर्न्स, वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट। इसमें कुछ नहीं है, मेरे को 2 रिटर्न्स फाइल करनी है क्वार्टरली बेसिस पे। जीएसटीआर 3B जो 22nd और 24th ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर, यानी अगर मैं बात कर रहा हूं 21-22 के पहले क्वार्टर के लिए, अप्रैल टू जून की बात कर रहा हूं, तो 22 या 24 जुलाई। 22 का मतलब है ऑलमोस्ट सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, 24 का मतलब है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जीएसटीआर 1 पहले डेट होती थी क्वार्टर एंड, उसको कहां पे ले आए 13th। पहले क्यों लेके आए? क्योंकि 3B ऑटो पॉपुलेट करना है, तो जब तक 3B की ड्यू डेट से पहले 1 नहीं होगा ऑटो पॉपुलेट नहीं हो सकता। फर्स्ट क्वार्टर 2021-22 की ड्यू डेट 13 जुलाई है। अक्टूबर से दिसंबर जो अभी क्वार्टर खत्म हुआ उसकी डेट भी 13 ही है, 13 जनवरी लास्ट डेट है। अब इस पूरी स्कीम के अंदर एक लैक्यूना रह रहा था, सर आप ऑटोमेशन 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 कर रहे हो, मेरे को बोल दिया क्वार्टरली फाइल करना है, जीएसटीआर 1 भी क्वार्टरली फाइल करना है, 3B भी क्वार्टरली फाइल करना है। जब मैं 1 क्वार्टरली फाइल करूंगा तो जिन लोगों ने मेरे से परचेज करी हुई है उनको क्रेडिट्स कब दिखाई देंगे? क्वार्टर के बाद दिखाई देंगे। उनको क्या 2 महीने अपनी जेब से कैश पे करना पड़ेगा? क्योंकि क्रेडिट तो नजर आएगा नहीं, जब क्रेडिट नजर नहीं आएगा तो टैक्सेस कहां से पे करेंगे वो? उसको मिटिगेट करने के लिए कि जो 2-3 महीने का गैप आएगा, उस गैप को मिटिगेट करने के लिए द गवर्नमेंट हैव नाउ इंट्रोड्यूस्ड इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। दिस इज ऑलरेडी लाइव ऑन द पोर्टल, ये ऑलरेडी लाइव भी हो चुका है पोर्टल के ऊपर। सो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या है? हमें जीएसटीआर 1 एक मोटा मोटा आइडिया है, B2B B2C होता है, उसमें अमेंडमेंट के ऑप्शन क्रेडिट नोट डेबिट नोट होते हैं। आप ये समझ लो जीएसटीआर 1 का ही रेप्लिका है IFF, और इसमें सिर्फ B2B ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझसे क्रेडिट किसको लेना है? B2B। B2C वाले को मिलेगा नहीं, एक्सपोर्ट्स वाले को मिलेगा नहीं। यानी टेक्निकली IFF में मेरे को क्या देना है? मेरे को क्रेडिट्स पास ऑन करने। एंड अगेन सर, IFF इज एन ऑप्शनल मेथड। आप करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते हो आप क्वार्टरली करो। ये तो सिर्फ मैं मैकेनिज्म दे रहा हूं कि अगर जिसको करना है वो कर ले। तो इसके अंदर क्या होगा? आप अपने इनवॉइसेस, B2B के जो इनवॉइसेस हैं, पहले महीने और दूसरे महीने के लिए इस फैसिलिटी से अपलोड कर सकते हो। इसके अंदर आप मैक्सिमम 50 लाख रुपए पर मंथ के इनवॉइसेस डाल सकते हो। तो 50 लाख की भी अगेन कैलकुलेशन है, 12 months into 50 लाख रुपीज इज अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ रुपीज। और क्यूआरएमपी एप्लीकेबल कितने के लिए?
5 करोड़ से नीचे वालों के लिए। तो टेक्निकली दे हैव ट्राइड टू कवर कि एक डिसेंट अमाउंट दे दे, मिसयूज इसका भी ना हो, क्यूआरएमपी का भी मिसयूज ना हो। आईएफएफ में मैंने पहले महीने 2 करोड़ डाल दिया, दूसरे महीने 2 करोड़ डाल दिया, मैं तो बाय बाय टाटा सी यू हो गया। फिर वही सर मैच तो हो रहा है लेकिन टैक्सेस की पेमेंट नहीं हुई। टू रिस्ट्रिक्ट दैट थिंग द गवर्नमेंट हैज केप्ट द लिमिट एट अ रीजनेबल लेवल ऑफ 50 लाख रुपीस, ताकि पूरा कवर भी हो जाए और सफिशिएंटली कंप्लायंस भी हो जाए। सो पहले 2 महीने के लिए मैं मैक्सिमम 50-50 लाख रुपए के B2B इनवॉइसेस यहाँ पे अपलोड कर सकता हूं, जिससे मेरे रेसिपिएंट्स को क्रेडिट मिल सकता है। प्लस अब मेरे को पता है कि सर मेरा तो सिर्फ एक ही पार्टी है जो मंथली रिटर्न फाइल करती है, बाकी तो करती ही नहीं है। तो आप पूरे B2B की जगह सिलेक्टेड B2B, आप जनवरी के सिलेक्टेड B2B फरवरी में फाइल कर सकते हो। यानी एज्यूम करते हैं मेरे टोटल 300 इनवॉइसेस से, उसमें से मुझे सिर्फ 10 रिपोर्ट करने हैं, तो आईएफएफ में आप 10 करो, बाकी 290 आप जीएसटीआर 1 में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पे आप एक सेमी डाटा जो इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको मंथ ऑन मंथ क्रेडिट देना है, सिर्फ उतना ही फाइल करा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द गवर्नमेंट हैज ओपन इट। अगेन सर इसका प्रोसेस बिल्कुल सही है, सेम है जीएसटीआर 1 की तरह। आप इसको रियल टाइम सेव कर सकते हो। आपने आज एक इनवॉइस बनाया, आप आईएफएफ में सेव कर दो, आपने कल बनाया उसको आईएफएफ में सेव कर दो। लेकिन ये अपलोड कब होगा? जब पूरा महीना खत्म हो जाएगा, जनवरी पूरी खत्म हो गई, तो 1 फरवरी से लेके 13 फरवरी तक मैं आईएफएफ के अंदर इसको सबमिट दबा सकता हूं, और 13 को दबते ही मेरा ये क्रेडिट जो है वो सामने वाले के 2A और 2B में जाके रिफ्लेक्ट करेगा। So IFF is only a mechanism, it is an optional mechanism, not a mandatory provision, so that the recipient is able to get the credits on a timely basis, so that जो आपका recipient है उसको credits जो है timely basis में मिल जाए। अब सर आपने स्कीम यहाँ पे खत्म हो गई, अब हम आते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात।